We'll be starting our sessions shortly. As you're aware, we have our esteemed guest, Mrs. Aparna Sharma, who will be speaking on how students should prepare themselves for the post-COVID world and employment. The session would be of 40 minutes of her presentation, followed by question answers. I request all the audiences to keep their question in hand. Once the presentation from the guest speaker gets over, you can post these questions on the chat box in Zoom or on Facebook. The questions will be taken up by the moderator of the session and will be produced in front of the speaker. In case you want to personally ask the question, you can just raise your hand and the operators would guide you through, and you can ask the questions personally also if you want to. Another 2 minutes to go. Madam has authored 2 books, so in the meantime, if you want to Google about the book, Between You and Me, Reality Bites, and one more Hindi version of Reality Bites, if I'm not wrong, ma'am. So you can surf through these books and you can get an insight of the guest speaker today who is already there, who has already joined our session. So please continue and we'll start the session in a while. Thank you. Anand sir? Yeah, whenever Chairman sir comes, can you please intimate once? Chairman sir is already. Is he already in? Yeah, okay. Yes. Thank you so much. Romia, Good morning, sir. Good morning. Ji, sir. Ji, sir. So, shall I, with your permission, shall I start the session, sir? Yes, please. Yes, please. Yes. Thank you so much. So, officially, I welcome all the guests, audiences, and dignitary to today's session. Today, amongst us, we have Mrs. Arpana Sharma and Aparna Sharma, sorry. And she is a celebrity in herself. As you can see, she has authored 3 books. I'll walk you through her I would not say small, but very difficult time from where she has come up to a big state like today. She is from a small town in Ujjain, and like all of us, she has had a humble beginning. But then she, after completing her post-graduation in personal management and industrial relation from Tata Institute of Social Sciences, Mumbai, Arpana has made her foray into corporate world through NOSL and moved into different roles of HR functions in organizations like Monsanto, UCB, Deutsche Bank, Lafarge, and Greaves Cotton. In her diverse role, Aparna has successfully been learning partner, mentor, and coach to leaders, leadership teams, and organizations to build their competencies, learning abilities, nimbleness for achieving purposeful performance. She has been awarded doctorate in human resource from California Public University, USA. Her research is very contemporary and is on an interesting topic about future of work and workspace in 2020 and 25. As an alumnus of OID, Aparna was an independent director on the board of TS Alloys Limited, a subsidiary of Tata Steels, and now on the board of Rajratan Global Wire Limited. She has an experience of more than
I guess. Just a minute, there is a technical difficulty. Yes. Sir, is my video live now? Yes, So she has an experience of more than 24 years in HR, in mentoring, in guiding. She is called as the leader of HR, and we are extremely uh, grateful to you, ma'am, for being here present today for this session. So before we begin interacting with you, ma'am, I would request our Honorable Chairman, sir, of Vikrant Group of Institutions to be speaking about our college a bit and to officially introduce the session. Over to you, sir, Chairman, sir. थैंक यू रोमी. Thank you, sir. सबसे पहले तो डॉक्टर अपर्णा शर्मा को मेरा विक्रांत प्रणाम. नमस्कार सर. बहुमुखी प्रतिभा संपन्न एक वुमेन लीडर के तौर पे हम आपको अपने बीच में पाकर के आज बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं. और निश्चित ही आपने जो विषय लिया है, इस महामारी के संकट के दौर के समय भी या इसके बाद भी स्टूडेंट्स की एम्प्लॉयबिलिटी, उनकी कॉन्फिडेंस का लेवल और उनके अंदर क्या क्या गुणवत्ता विकास होना चाहिए, इस विषय पे आप व्याख्यान देंगी. मुझे लगता है कि यूथ के लिए, यूथ एम्पावरमेंट के लिए ये बहुत गुणकारी होगा, बहुत लाभकारी. मैं बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा. आपका व्याख्यान करने के लिए और सुनने के लिए मैं आतुर हूँ. मैं आपका तहे दिल से पूरे परिवार की ओर से, बृहत्तर परिवार जो विक्रांत का इंदौर और ग्वालियर का है, सबके स्टूडेंट्स, सबके टीचर्स, पूरे स्टाफ के साथ आपका अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं. आपको पुनः विक्रांत प्रणाम करके और आपसे आग्रह करता हूं कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं. रूमी प्लीज. Ma'am, amongst us, we also have our Honorable Managing Director and Secretary VGI Indore, Mr. Nitin Tomar. So I would request Nitin sir to speak few words on this occasion. Thank you, Rumi ma'am. Good morning, Dr. Aparna Sharma. And I welcome you here on behalf of Vikrant Group of Institution. I'm the Managing Director. I'm looking after the institution here in Indore. And the topic that you have chosen, I don't know, I mean, you and Dr. Satyanarayan sir together, but the topic is very interesting, and this is something which students are, looking forward to. क्योंकि कोविड वर्ल्ड में अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन बच्चों का एक ही आ रहा है कि सर अभी आगे क्या होगा. I mean, the kind of situation which is going on, we don't know क्या होगा आगे. But employment wise सबसे बड़ी चिंता बच्चों की है कि आगे नौकरी के मार्केट में क्या होने वाला है. What will exactly happen? How are the things? And we as of now, we are getting a response from the employment companies as well. And but these companies are all online basis. You've heard of Baiju, you've heard of the online companies which are more into the market now. तो जितने भी online companies हैं जो work from home कराते हैं, they are more into the employment market now. And the traditional companies जो चलते थे वो सारे के सारे they have stopped. That this is what I have observed in recent 2 to 3 months. But although market would change, let's see, the manufacturing has again started here in Pithampur in Indore. And hope that things would be better. But the students, the biggest question with the students is the same. What happens to the post-COVID world and the employment? I think you will be the better person to answer the same question. So I welcome you once again and looking forward to hear from you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you. Truly said, sir. In fact, every student today worries about what will happen tomorrow. How secured is his career, his future tomorrow? And today, rightly, ma'am and Dr. Satyanarayan sir has chosen the topic for discussion. At this point, I must say today's speaker, Madam Aparna, is so humble. I could understand it in just one go. Yesterday, I was interacting with her and I read her profile. It was a huge profile. And then I also read that she is doctorate from University of California, and I thought that I should address her as Dr. Aparna Sharma. So I just put a question, ma'am, how would you like to get addressed? And in a simple language, she said, just call me Aparna. I mean, that itself talks how humble, and the knowledge and humbleness is like, it's always proportional. The more knowledgeable you are, the more humble you are, and that she had justified in just one line. We are really today grateful that, ma'am, you are here. Amongst us, now we have our esteemed Honorable
Secretary Vijay Gwalior. So Vikrant sir, would you like to speak something Yes. on this occasion? Good morning, everyone. I hope all of you are doing well and are in great health. First of all, I'd like to welcome Aparna ma'am, Dr. Aparna ma'am. It's such an honor to have you here, ma'am. We have all gone through the decorated profile you have. And like everyone, I'm also really curious to know about the topic which we have taken here, that how the students are going to deal in the post-COVID employment world. So all the students will be curious, and even me being part of the management, even we want to know how the things are going to be. So we are all really curious and looking forward to hear your keynote, ma'am. Thank you so much for coming. Thank you. Thank you, sir. I must put a note over here. Both our secretaries from Vijay, Gwalior and Indore, they are young entrepreneurs by themselves, and they have created a wonderful work environment. Ma'am, perhaps a best example of HR that they have set right at this ground. And definitely on that note, I'll proceed with the session. I would now request Doctor Yes, sir. Dr. Aparna के बाद Dr. Romia भी बोल देता हूँ. Would be So doctor. two Yes, to 4 more Dr. days to go, sir. 4 more days. So, 5 more days. 4 more days. Okay. Dr. By Romi. Monday. Okay. No, sir. So, Good. on that note, I would now request our esteemed, most respected Dr. Satyanarayan, our guru, in fact, Dr. Satyanarayan, sir, to welcome ma'am and introduce madam to our college, sir. Mia, don't call me guru. I'm just one of you, like all of us. Okay. Anyway, so I think I will introduce our guest speaker, Mrs. Aparna Sharma. She's a force behind people, and I would like to share her favorite quote. She expressed at CIA. This is not the recent one, but sometime back when she was awarded the CIA Thought Leader. Let me share the quote. Everyone studies the same concepts in their syllabus. It's your skill and way of approaching people which makes you different. So with that note, I hand it over to you, ma'am. Thank you very much, sir. Ma'am, can I begin? Yes, ma'am. Please over to you, ma'am. Yeah. So मैंने भी सीखा सबसे विक्रांत प्रणाम और विक्रांत नमस्कार करना. नमस्ते तो हम सभी करते हैं, बट ये विक्रांत तरीका है. आज आई एम ऑल्सो I've also become a part of this. So thank you very much for once again reminding me about it. तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आपने इतने प्रेम से मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया. और वाकई मुझे कहना चाहिए कि इतनी शुद्ध हिंदी मैंने बहुत सालों बाद सुनी है. और बोलती तो मैं हिंदी हूँ, पर मतलब मुझे बहुत मधुर सुनाई दे रहा था जब चेयरमैन सर बोल रहे थे, क्योंकि बम्बई में रह के काफी हिंदी तो बम्बैया हो जाती है और ज्यादातर फिर उसमें मराठी का तड़का लग जाता है. तो वो कुछ खिचड़ी भाषा हो जाती है. तो जब सत्यनारायण सर ने कहा कि हिंदी में बोलना है, तो मैंने कहा सर ये तो बहुत अच्छा मौका है एंड मैं ये बिल्कुल हाथ से नहीं जाने देना चाहती. तो बात भाषा की नहीं है, बात ये नहीं है कि आप कौन सी भाषा में बोलते हैं या आपकी मातृभाषा क्या है. बात ये है कि आप किस तरह से अपने विचारों को व्यक्त करते हैं ताकि वो जो सुनने वाले हैं उनको समझ में आए और उनके दिल को छू जाए. बात इंटेलेक्चुअली समझने की नहीं है, पर उनको दिल में बैठ जानी चाहिए वो बात. उनको ऐसा लगना चाहिए कि मैं इस चीज से रिलेट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. राइट. तो मैडम ने बताया कि मैं भी वहीं की हूँ, हम्बल बिगिनिंग्स रहे हैं मेरे.
तो आप ही के बीच की हूँ। उज्जैन में महाकाल नगरी में जन्म हुआ मेरा, और कुछ एक साल वहाँ पढ़ने के बाद काफी जगह भटकी हूँ। और बेसिकली जीवन में सभी को पापड़ बेलने होते हैं। नॉट दैट कि पापड़ बेलना एक फ्रेज है, तो पापड़ बेले हैं, मैंने भी तरह तरह के बेले हैं, और बेलने ही पड़ते हैं, राइट। किसी को भी प्लेटर पे चीजें नहीं मिलती। सो कहने का तात्पर्य ये है कि इट रियली डजंट मैटर कि आप किस जगह के हैं या आपका क्या फैमिली बैकग्राउंड है। आप कहाँ जाना चाहते हैं और उसके लिए आप क्या मार्ग चुनते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। और उसमें अगर पैशन और हार्ड वर्क, मेहनत करने की आपकी क्षमता हो, तो आपको कोई ताकत आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती, और ईश्वर भी आपका पूरा पूरा साथ देता है। ये मेरा विश्वास ही नहीं, ये मेरा खुद का अनुभव भी है, राइट। सो इसी बेसिस पे आपने बहुत सारी डिग्रियों के बारे में बताया मेरी, और जो कोई क्वालिफिकेशंस वगैरह वो अलग रख के, मैं ऐसा समझती हूँ कि मैं एक स्टोरी टेलर हूँ। और मुझे लगता है कि किसी भी चीज को समझाने के लिए अगर आप उसको कहानी के रूप में समझाएं तो वो बात फिट हो जाती है। तो आप सभी ध्रुव तारा की स्टोरी तो जानते होंगे, और ये मेरी फेवरेट स्टोरी है। अब क्योंकि हम इंटरैक्टिव मोड में नहीं है, अभी मैं ही बोल रही हूँ, तो स्टोरी इस तरह की है कि राजा उत्तानपाद जो थे, उनकी 2 रानियां थी, बड़ी रानी सुनीता और छोटी रानी सुनिधि। तो ध्रुव जो है वो बड़ी रानी सुनीता के पुत्र थे। तो जैसा कि बच्चों का रहता है, वो अपने ध्रुव जो है पिता की गोद में जाके बैठे एक दिन, और उनकी जो छोटी रानी थी, उन्होंने उनको वहां से हटा दिया और बोला कि ये तुम्हारा अधिकार नहीं है। तो काफी दुखी हुए ध्रुव, और मतलब दोनों रानियों के बीच में राजा का ज्यादा स्नेह छोटी रानी की तरफ था। तो जब माँ ने उनको रोते हुए पाया तो पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि वहां पिता की गोद में नहीं बैठने दिया। तो माँ ने कहा कि रोने से कुछ नहीं होगा, आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि जिससे आपका स्थान वहां पर या दुनिया में इस तरह का स्थान आप अपने लिए अर्जित करें ताकि आपको वहां से कोई नहीं हटा सके। राज्य हो, पिता की गोद हो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, या सोसाइटी हो, कहीं पर भी हो, ये स्टोरी आई थिंक बहुत मायने रखती है। क्योंकि अगर हम देखें कि ध्रुव जो है हमारे गगन मंडल में, हमारे कॉन्स्टलेशन में ध्रुव तारा जो है, उसका बहुत सिग्निफिकेंस है। वो एक ऐसी पोजीशन पे है जहां से सब तारों का और सब पूरी गैलेक्सी का आपको समझ में आता है कि डायरेक्शन कहाँ है, एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट शाइनिंग ब्राइटेस्ट स्टार इन द होल कॉन्स्टलेशन। तो वो उनकी माँ का कहने का ये तात्पर्य था कि आप अपनी ऐसी पोजीशन बनाएं ताकि आपको कोई डिसलॉज नहीं कर सके, आपको कोई हटा नहीं सके वहां से। और हमारे जीवन में भी हमें इसी तरह के कार्य करने हैं, या हमें इसी तरह से आगे बढ़ना है कंसिस्टेंटली, शॉर्टकट से नहीं, इसी तरह से बढ़ना है ताकि हम ध्रुव तारा की तरह अपना जो पोजीशन है सोसाइटी में, समाज में, परिवार में, वो इस तरह का बना सकें ताकि हमें वहां से कोई डिसलॉज ना कर सके। तो हम सब मेरे लिए ध्रुव तारा जो है और ये स्टोरी बहुत प्रेरणादायक है, तो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ भी शेयर करना चाहिए। इसमें बहुत सीख है, एंड आई होप
कि आप मेरी जो मैं आपको बताना चाहती थी वो आप यू गॉट द पॉइंट। ऑलराइट, तो ये तो हुई स्टोरी की बात। नाउ जो सिचुएशन है अभी, ओके, इट्स इम्पोर्टेंट कि हमें सच्चाई का सामना करना चाहिए, राइट? तो करंट सिचुएशन क्या है, व्हाट आर द रियलिटीज इन द मार्केट? सबसे बड़ा ये कि जॉब मार्केट क्रैश हो गया है पूरी तरह से। कहीं बहुत जगह नई अपॉर्चुनिटीज नहीं हैं। करंट लोगों के अभी ले ऑफ हो रहा है, सैलरीज नहीं दी जा रही हैं, इंक्रीमेंट्स नहीं हैं, एक्सेट्रा। एंड ये कुछ समय तक ऐसा चलेगा, ओके? रिकवरी, यू रिकवरी होगी, वी रिकवरी होगी, डब्ल्यू होगी या हॉकी स्टिक होगी, ये सब इकोनॉमिक मॉडल्स चल रहे हैं, बट किसी को मालूम नहीं है कि एग्जैक्टली क्या होगा, ओके? क्योंकि ये जो क्राइसिस है, इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसको किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था कि ये इतना बड़ा और इतना विशाल हो सकता है और इससे ये सब परेशानियां होंगी। तो एक तरह से हम लोगों को इट हैज कॉट अस अनअवेयर, हमें बिल्कुल पता नहीं था कि इस तरह का कुछ होने वाला है, इसके लिए कोई प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं थी। सो करंट सिचुएशन ऐसी है जॉब मार्केट की। दूसरा, कंपटीशन अधिक है फॉर द अवेलेबल जॉब्स। सो जो जॉब्स हैं उनके लिए कंपटीशन ज्यादा है among the existing people. So students हो या lateral hires हो या qualified people हो, उन सब के लिए competition बहुत ही intense है और उसके लिए उन्हें अपनी academic capability, अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ प्लस और कुछ चीजें जोड़नी पड़ेंगी ताकि आप एक दूसरे से वैल्यू एडेड तरीके से डिस्टिंग्विश कर सकें। तो आपका वैल्यू एडेड या यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, आपका यूएसपी क्या है, ये इसी तरह से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ये दूसरी बात। तीसरी बात, इंटरव्यूइंग जितनी भी है कॉर्पोरेट में वो अभी फिलहाल तो वर्चुअली है और अभी आप मान के चलिए कि 6-8 महीना तो इसी तरह से चलेगा। तो इंटरव्यूज वर्चुअल रहेंगे और वर्चुअल इंटरव्यूज के लिए अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका अलग रहता है कंपेयर टू जब आप फेस टू फेस किससे मिलते हैं। अगर आप फेस टू फेस मिलते हैं तो वो आपका बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आप रुक के जवाब दे रहे हैं या आप तुरंत जवाब दे रहे हैं, उसमें फर्क पड़ता है। वर्चुअली कुछ और चीजें देखी जाएंगी और क्योंकि हमें इसकी प्रैक्टिस नहीं है, हमें इसकी आदत डालनी पड़ेगी। तो ये तीसरी बात। चौथी बात, डिग्री जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हम पढ़ रहे हैं, डिग्री की अपनी महत्ता है और वो रहेगी। नो वन कैन टेक अवे फ्रॉम दैट, वो तो जरूरी है ही सही। तो पढ़ाई करना इसलिए नहीं कि हमें पास होना है और डिग्री लेनी है, बट इसके अलावा भी पढ़ाई करना कुछ और उसके बेनिफिट्स हैं, क्योंकि उसके साथ साथ हमें कुछ और स्किल्स भी सीखने पड़ेंगे। जैसा मैंने बताया यूएसपी आपका क्या है, तो कुछ स्किल्स जो कि विजिबल हो, जो इंटरव्यूअर हो वो डेमोन्स्ट्रेट देख सकें आपके हाव भाव में, आपके कथन में, आपके बोलचाल में, उनको ये समझ में आने लगे कि क्या आप अडेप्टेबल हैं, क्या आप टीम प्लेयर हैं, क्या आप फ्लेक्सिबल हैं, क्या आप में रिजिलियंस है, आपकी इच्छा शक्ति, दृढ़ शक्ति कितनी मजबूत है, और आपका कम्युनिकेशन किस तरह का है। और कम्युनिकेशन में रिटन भी होता है और वर्बल भी होता है। तो एटलीस्ट इंटरव्यू के टाइम पे वो आपको वर्बली सुनेंगे, बट बहुत सारी चीजें इंट्रोड्यूस की जा रही हैं ताकि एलिमिनेशन
आपकी रिटन कम्युनिकेशन से भी हो सकता है, राइट? तो ये कुछ एक चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये तो मैंने आपको रियलिटी की बात बताई। अब कौन सी इंडस्ट्रीज अफेक्टेड हैं? तो अगर देखा जाए तो हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, टूरिज्म, इन सारे सेक्टर्स का बैंड बजा हुआ है। बहुत बुरी हालत है। धीरे धीरे अनलॉक के रहते कुछ इम्प्रूवमेंट है, बट जो डेंट लगा है वो काफी समय लगेगा अभी उसको भरपाई के लिए। कौन से सेक्टर्स हैं जो अच्छा कर सकते हैं और जिस पे हमें फोकस करना है? तो जैसे हेल्थ केयर है, फार्मास्यूटिकल्स हैं, ग्रोसरी चेन्स हैं, डिलीवरी सर्विसेज हैं, वर्चुअल टेक्नोलॉजी टूल्स हैं, रिमोट लर्निंग है, इंस्ट्रक्टर बेस्ड लर्निंग है, जैसे कि बायजूस है, वेदांतु है, स्क्वायर पांडा है, सम ऑफ दीज वंस। तो ये सेक्टर्स आर डूइंग रिलेटिवली ओके। दवाइयों की सबको जरूरत पड़ती है, तो वहां पर क्वालिफाइड लोगों की जरूरत है। सो एज आई अंडरस्टैंड कि इस ऑडियंस में एमबीए के स्टूडेंट्स भी हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी हैं। तो एमबीए के जो स्टूडेंट्स हैं उनके क्या जॉब स्किल्स, बेसिकली एमबीए जो है हार्ड डेटा और टेक्निकल स्किल्स को सॉफ्ट स्किल्स के साथ कंबाइन किया जाता है। एंड सॉफ्ट स्किल्स में अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इमोशनल इंटेलिजेंस और एम्पैथी। ओके, इमोशनल इंटेलिजेंस और एम्पैथी डेवलप करने के लिए आपको कोई क्लास ज्वाइन नहीं करनी है, आपको कहीं बाहर जाके कोई कोर्स नहीं ज्वाइन करना है, बट ये हम अपने डे टू डे लाइफ में जो है इन चीजों को पर अगर ध्यान देंगे और कुछ एक प्रैक्टिसेस करेंगे तो हम उसको डेवलप कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, पॉजिटिव रहना और पॉजिटिव माइंडसेट। अभी पॉजिटिव माइंडसेट के लिए आपको कोई क्लास ज्वाइन नहीं करनी है, राइट? पॉजिटिव माइंडसेट अपने आप का, अपनी विचारधारा को पॉजिटिव रखना, दुखी नहीं होना, परेशान नहीं होना। और आपने सुना होगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ऐसी कविता है हरिवंश राय बच्चन जी की। तो और मेरा खुद का मानना है, मेरे खुद के एक्सपीरियंस में, नोबडी एवर डाइड ऑफ हार्ड वर्क। तो मेहनत करने से किसी का कभी कोई नुकसान नहीं हुआ। तो क्या करना है, आप जहां पर भी हैं आपको मेहनत करनी है। और मेहनत ऐसा नहीं कि बस आज सेशन अटेंड किया तो सब मेहनत करने लग गए। मेहनत हमें किस दिशा में करनी है, तो माइंडफुली मेहनत करनी है। सभी स्टूडेंट्स के लिए मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि आपको ये जो समय मिला है, सर मुझे बता रहे थे कि अभी नए सेशन शुरू नहीं हुए हैं, तो ये जो समय मिला है, समय व्यर्थ ना गवाएं। समय का बहुत इम्पोर्टेंस है, इट्स वेरी वेरी प्रेशियस। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसके लिए यूज दिस टाइम प्रोडक्टिवली अपने आप को जानने के लिए। अब अपने आप को जानने का मतलब ये नहीं कि आप एक पेड़ के नीचे बैठ जाएं और गौतम बुद्ध की तरह से तपस्या करने लगे। मतलब आप मेरी बात को लिटरली नहीं लीजिए, पर कहने का मतलब ये है कि अपने आप को जानना। अपने आप को जानना मतलब मेरी क्या पॉजिटिव्स हैं, मेरी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, मुझे किन एरियाज में डेवलप करना है। अगर आपको गुस्सा आता है तो आप अपने गुस्से के बारे में क्या कर सकते हैं। नॉर्मली हम अपने परिवार वालों से पूछते हैं कि अच्छा मुझे क्या करना चाहिए, तो वो प्रेमवश, ममतावश आपको काफी सारी चीजें बताते हैं जो कि उनका अनुभव है। पर समय बदल रहा है, उनका अनुभव अपनी जगह सही है, बट हमें आज के जमाने में अपना वैल्यू सिस्टम इंटैक्ट रखते हुए क्या करना है, इसका हमें आसपास के अपने एनवायरनमेंट से समझ लेनी पड़ेगी। तो
आप ये चिंतन कर सकते हैं कि आपको क्या अच्छा लगता है, किस तरह का काम अच्छा लगता है, किस तरह का काम अच्छा नहीं लगता है, आपका नेचुरल इंटरेस्ट क्या है, और उसकी तरफ अगर आपका रुझान है तो ये बात एस्टेब्लिश हो जाती है कि हाँ चलिए मैं ये काम बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। तो हमेशा रोजमर्रा की भाग दौड़ में हम अपने ऊपर इन चीजों पे ध्यान देना भूल जाते हैं। हम लोग हमेशा भेड़ चाल में और एक रैट रेस में लगे रहते हैं, क्योंकि सब ये कर रहे हैं इसलिए हमें भी यही करना है। क्या ये हमारे जो पर्सनालिटी है उसके अनुकूल है? क्या हम अपने आप को प्रेशर में डाल के कुछ काम कर रहे हैं, या हम सहज अपने आप ये काम अच्छे से करते हैं? आई थिंक ये टाइम मिला है तो आपको ये थोड़ा सा पॉज लेके, थोड़ा सा ठहर के ये चीज अपने आप में समझ के और आत्मसात करने की जरूरत है। आई थिंक द एंटायर वर्ल्ड हैज कम टू अ स्टैंडस्टिल, मतलब पूरा का पूरा कुछ समय के लिए तो सभी कुछ लॉकडाउन में था, तो इससे अच्छा समय हमें अपने आप के साथ सत्संग करने के लिए, ओके। एंड आप बहुत सारे यंगस्टर्स स्टूडेंट्स हैं, वो बोलेंगे कि आप इस तरह की एडवाइस दे रही हैं। मैं आपको साधु संत बनने की एडवाइस नहीं दे रही हूँ, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि अपने आप से सत्संग करना, जहाँ पे आप अपने इंटरनल रिफ्लेक्शन करें, वो बहुत जरूरी है। दूसरी चीज बिहेवियरल असेसमेंट, एंड आई विल कम टू दिस पार्ट की बिहेवियरल असेसमेंट, क्योंकि ये कुछ मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि फैकल्टी को स्टूडेंट्स के लिए क्या मैं कुछ सजेस्ट करूंगी। तो इस टाइम में टू नो वन सेल्फ कैसे करेंगे? बिहेवियरल असेसमेंट्स के थ्रू, ऑलराइट। एंड ये पॉइंट में फिर से आई विल कम बैक टू दिस। दूसरा, स्टूडेंट्स को टू नो वन सेल्फ एंड टू डेवलप वन सेल्फ, आप अपने मेंटर्स और कोचेस से टच में रहिए। तो जिनमें आपको विश्वास है, जिनसे आपको लगता है कि आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, आप ऐसे लोगों के सानिध्य में रहें, आप ऐसे लोगों का साथ ढूंढें, और अपने फैकल्टी में भी ऐसे लोगों से इंटरेक्ट करें जो कि आपके मेंटर और गाइड्स हों, राइट। तीसरी चीज ये कि ये जॉब मार्केट बहुत डिफरेंट है, इसके लिए इट इज इम्पोर्टेंट कि आप इस मार्केट को थोड़ा स्टडी करें। एंड दिस इज इम्पोर्टेंट बोथ फॉर स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी, कि इस मार्केट को स्टडी करने की जरूरत है। किस तरह के डिमांड्स हैं, किस तरह के जॉब्स हैं, क्या जेडीज, जो जॉब्स ऑनलाइन भी पोस्ट होते हैं, जैसे कि नौकरी है, मॉन्स्टर है, इंडीड है, जॉब लीड्स हैं, ये जो वेबसाइट्स हैं, इन पे किस तरह के जॉब डिस्क्रिप्शंस आ रहे हैं, भले ही वो इंजीनियरिंग साइड से हो या मैनेजमेंट साइड से हो, किस तरह के जॉब्स आ रहे हैं, और उन जॉब डिस्क्रिप्शंस में किस तरह के स्किल्स रिक्वायर्ड हैं। तो अंडरस्टैंडिंग द मार्केट का ही मतलब है कि थोड़ा सा रिसर्च करके कि जॉब डिस्क्रिप्शंस में किस तरह के स्किल सेट्स मांगे जा रहे हैं, और उसके लिए, उन स्किल सेट्स के लिए फिर क्या चीजें आप में हैं और क्या चीजें डेवलप करनी है। तो ये डेटा माइनिंग करने से हम बहुत सारा समय सोशल मीडिया पे ऐसे ही चीजें ब्राउज करने में निकाल देते हैं। आई थिंक मैंने जो आपसे कहा कि समय को का सदुपयोग करना चाहिए, तो इसको बहुत माइंडफुली यूज करके इस तरह से अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाए। चौथी बात ये कि इस समय में गैदर एज मच एक्सपीरियंस एज पॉसिबल, और आप जरूरी नहीं है कि जॉब्स हो, इंटर्नशिप्स हो, वॉलंटियर वर्क हो, एक्सपीरियंस इज इम्पोर्टेंट। वो भले ही ऑनलाइन हो या कहीं पे फिजिकली हो, घर पे बैठ के अगर आप उस स्थिति में हैं जहाँ पे आप वॉलंटियर वर्क कर सकते हैं, तो आपको ये समय उस एक्सपीरियंस के लिए यूज करना चाहिए। इट डजेंट मैटर कि उसमें आपको कोई स्टाइपेंड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, एक्सपीरियंस इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट, स्टाइपेंड एंड द मनी इज सेकेंडरी, राइट। और मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने मैडम ने बताया, मैंने भी आपको बताया कि मैं कहाँ से हूँ।
और मैंने बताया कि पापड़ बेले हैं। तो ये जो सफर मेरा रहा है ये बहुत ही ऐसा नहीं है कि फूलों से बिछा हुआ सफर रहा है। बहुत कांटों पे चले हैं, अंगारों पे चले हैं, और दर्द और कमी का भी बहुत एहसास रहा है। पर उससे जो है सीख ली है, और दृढ़ता आती है कि मतलब मुश्किलें फेस करने से आप ज्यादा स्ट्रांग बनते हैं। ये मेरा मानना है और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। नेक्स्ट क्या करना चाहिए, तो आप में से जिनके पास, जिन्होंने सीवी बनाया है, मतलब आपका रेज्यूमे बनाया है, बायोडेटा बनाया है, और अगर नहीं बनाया है तो बनाना चाहिए। मैं आई विल कवर दैट फैकल्टी की गाइडेंस वाले में। बट एक सीवी बनाने के बाद हर जॉब को देख के जब आप अप्लाई करेंगे आगे जाके, तो वो टेलर मेड सीवी होना चाहिए। कुछ चीजें इधर उधर होनी चाहिए उसमें। और आजकल के जमाने में स्पेशली जहाँ पे वर्चुअल इंटरव्यूज हो रहे हैं, वीडियो और ऑडियो सीवीज क्लिप्स के लिए भी मांग रहे हैं, क्योंकि पता नहीं कि आप ही इंटरव्यू, मान लीजिए अगर मैंने आपको सीवी भेजा तो क्या आप मेरा ही इंटरव्यू ले रहे हैं या मेरी जगह कोई और बोल रहा है। इसके लिए फोटो भी मांगते हैं और वीडियो क्लिप्स भी मांगते हैं। तो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में है कि वीडियो और ऑडियो क्लिप्स भी सीवी के साथ में। तो हमें समय के साथ चलना है और हमको ये चीज भी सीखनी और ध्यान में रखनी है। उसके बाद मैंने ऑब्वियसली कुछ चीजें बताई, जैसे कि वर्क प्लेस स्किल्स क्या हैं। तो कम्युनिकेशन के साथ में टीम प्लेयर्स हैं, रेजिलियंस है, फ्लेक्सिबिलिटी है, लीडरशिप स्किल्स हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस है। ये सब चीजें भी हमें डेवलप करनी चाहिए। और स्टूडेंट्स में जनरली मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करती हूँ, और मैंने अपना क्लास 12th उज्जैन से ही पढ़ा है। तो मैंने अपने आप से एक प्रॉमिस किया था जब मैं वहां से गई थी, क्योंकि उस जमाने में इंटरनेट भी नहीं होता था, कि मैं जितने स्टूडेंट्स की मदद कर सकती हूँ आगे बढ़ने में, मैं वो करूंगी। क्योंकि मुझे वो सब अपॉर्चुनिटीज और गाइडेंस नहीं मिली थी जब मैं वहां रहती थी। मतलब उस जमाने में तो न इंटरनेट, टेलीफोन वगैरह भी, और हम जैसे परिवार से आए थे, वहां पर बहुत इस तरह का सुविधा और साधन नहीं होता था। तो हमने बहुत कमी देखी है। तो मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया था कि आई विल गिव बैक। मैं गाइड करूंगी, कोच करूंगी, और इसीलिए मैं इस तरह के सेशंस में बहुत रुचि लेती हूँ। क्योंकि अगर मेरी कुछ एक बातों से आपको फायदा हो और आपको प्रेरणा मिले, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, और मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने अपना कुछ फर्ज आप लोगों के प्रति और ईश्वर के प्रति वो उसको मैंने पूरा किया है। तो उसके साथ ही साथ में टेक्नोलॉजी स्किल्स, और टेक्नोलॉजी स्किल्स स्मार्टफोन चलाना नहीं होता है। टेक्नोलॉजी स्किल्स में आपकी डिजिटल कैपेबिलिटी, डिजिटल एक्सपीरियंस। और मुझे कोई बता रहे थे उस दिन कि किसी इंस्टीट्यूट में, आई विल नॉट नेम द इंस्टीट्यूट, अब वो एग्जीक्यूटिव एमबीए कर रहे हैं और उनको वहां पे सिखाया जा रहा है पाइथन चलाना, पाइथन में कोड कैसे करते हैं। अब वो जो प्रोफेशनल हैं, वो एक कंपनी सेक्रेटरी हैं, उनका वो कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव एमबीए, क्योंकि वो वर्किंग लोगों के लिए है। उनका पाइथन से क्या लेना देना है, वो अपने काम में कभी पाइथन इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनको कोडिंग की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आप डिजिटल कैपेबिलिटी वो डेवलप करें जो कि जिससे आपका फायदा हो और जो आपको काम में आए। ऐसा नहीं कि हम कुछ XYZ सीख रहे हैं और उसमें टाइम लगा रहे हैं, जबकि हमें कुछ और सीखना चाहिए। तो करंट टाइम्स में डिपेंडिंग ऑन आपकी क्या फील्ड है, बट डिजिटल कैपेबिलिटी और डिजिटल डेक्सटेरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशंस भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रही हैं।
और मैं समझ सकती हूँ कि अभी आपके कॉलेजेस शुरू नहीं हुए हैं, बट एजुकेशन पूरा ऑनलाइन ही होगा और ये आपके वेबिनार्स हो रहे हैं, तो वेबिनार फटीग होने लग गया है कि स्टूडेंट सोचते हैं कि अब मतलब ठीक है, अब ये बोल के चले जाएंगे, सुनना नहीं सुनना, हम वीडियो ऑफ कर देते हैं, कौन देख रहा है हम क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, है ना। पॉइंट ये है कि नुकसान और किसी का नहीं है, नुकसान आप ही का है अगर आप इन चीजों पे ध्यान नहीं देंगे, राइट। एंड फाइनली व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज आपकी जो एनर्जी है, हर आदमी के पास 24 घंटे हैं और एनर्जी भी आपकी लिमिटेड है, टाइम भी फाइनाइट है और एनर्जी भी फाइनाइट है। उसको फोकस जो है हमें बहुत इफेक्टिवली करना है। जिन चीजों पे मैंने जो कुछ एक चीजें आपको बताई, उनकी तरफ with a positive attitude and on what can be controlled. The current situation is a given. उसको हम फिलहाल बदल नहीं सकते, वो हमारे बस में नहीं है। तो rather than sitting and brooding कि अब ऐसा हो गया और ये कब तक चलेगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हमें पॉजिटिव सोच के और आगे बढ़ना है। आपको आपका जो भी ड्रीम करियर है, ड्रीम जॉब है, उसको लेकर हताश नहीं होना है कि अब कैसे होगा, अब क्या होगा, और मैं 5 नारियल फोड़ता हूँ या फोड़ती हूँ तो उससे मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। ये सब भगवान सबके लिए बराबर है और वो सबकी बराबर मदद करते हैं, बट जो सच्चे मन से मेहनत करते हैं वो उनकी ज्यादा मदद करते हैं। ये अगेन मेरा विश्वास है और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो आपको अपने ड्रीम जॉब और ड्रीम करियर के बारे में सोचते रहना है, उसके लिए लगन के साथ मेहनत करना है, पर उसके साथ साथ आज के जमाने में एक प्लान बी और एक प्लान सी भी होना चाहिए। आपके पास बैकअप प्लान भी होना चाहिए और ये ऑल्टरनेटिव आपको सोच के और समझ के रहना चाहिए कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये लंबा चला और ये नहीं हो पाया, तो what will you do next and what will you do as a fallback, और फाइनली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये भी प्लान होना चाहिए कि आपने अगर या प्लान बी या प्लान सी को आपने एक्टिवेट किया, तो फाइनली फिर आप प्लान ए की तरफ कैसे जाएंगे। ओके और ये सब चीजें ऐसे कागज पेंसिल पे नहीं, बट आई एम सेइंग इसके लिए बहुत चिंतन मनन की जरूरत है, बहुत इंटरेक्शन की जरूरत है, एक्सपीरियंस लोगों से बात करने की जरूरत है। एंड जरूरी नहीं है कि आपको सारा का सारा प्लान आज ही बना लेना है और आज ही समझ में आ जाना चाहिए, बट कुछ फ्रेमवर्क समझ में आना चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, धीरे धीरे। वो कहते हैं ना कि जो सक्सेस की सीढ़ियां है, जरूरी नहीं कि आपको पूरा स्टेयरकेस एक ही बार में दिखना चाहिए। आपको कुछ भी सीढ़ियां अगर दिखें तो आप उन सीढ़ियों पे चढ़ने का प्रयास करें। जरूरी नहीं है कि आपको अल्टीमेटली पूरा का पूरा स्टेयरकेस दिखना चाहिए। तो मंजिल सामने होनी चाहिए, मंजिल का पता होना चाहिए। ओके वो कहते हैं ना कि इफ यू डोंट नो वेयर यू आर गोइंग, एनी रोड विल टेक यू देयर। अगर आपको पता नहीं है कि आपको कहाँ जाना है, तो आप कैसे ना कैसे कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे, राइट। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें फोकस करना है, समय का सदुपयोग करना चाहिए और एनर्जी भी हमारी प्रॉपरली यूटिलाइज हो, राइट। दूसरी चीज ये कि जैसे कुछ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी हैं, तो आजकल जरूरी नहीं है कि आप कंप्यूटर या एनालिटिक्स में इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो ही आप ये कर सकते हैं, बट जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, ब्लॉकचेन है, साइबर सिक्योरिटी स्किल्स हैं, MBA के स्टूडेंट्स के लिए डिजिटल मार्केटिंग है। ये कुछ एक चीजें हैं जो कि हॉट स्किल्स में माने जाते हैं, राइट। सो इनका हमको ध्यान रहना चाहिए। और कस्टमर केयर में जॉब्स हैं, लॉजिस्टिक ट्रैकिंग में जॉब्स हैं, कंज्यूमर रिसर्च में जॉब्स हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस में जॉब्स हैं, काउंसलिंग में जॉब्स हैं। ये कुछ एक फील्ड्स हैं कि इनको भी एक्सप्लोर करना चाहिए। ओके नाउ फ्रॉम हियर आई थिंक
इंस्टीट्यूट्स और फैकल्टी मैनेजमेंट के लिए कुछ एक मेरे सजेशंस हैं, जैसा कि मैं देखती हूँ क्या हो रहा है। तो मैंने कम्युनिकेशन की बात की कि रिटन और वर्बल। तो रिटन और वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स नीड टू बी डेवलप्ड, उनको आपका जो करिकुलम है उसमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एंड मोर सो दैट आजकल का जो वर्क प्लेस सिनेरियो है उसको देखते हुए ये कम्युनिकेशन स्किल्स जो है टेलर मेक करने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट्स अपने तरीके से करेंगे, बट आई थिंक फैकल्टी नीड्स टू पे अ लिटिल मोर अटेंशन टू दिस एज टू हाउ टू हेल्प स्टूडेंट्स। और अंग्रेजी बोलना या अंग्रेजी में बात करना ही कम्युनिकेशन नहीं होता है। सामने वाले ने क्या कहा और क्या नहीं कहा उसको समझने की शक्ति, और कम्युनिकेशन में लिसनिंग भी आता है। कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली अबाउट टॉकिंग, कि आप बोल रहे हैं, पर आप में कितना पेशेंस है सुनने के लिए, और सुन भी रहे हैं तो सुन रहे हैं क्योंकि दूसरा कह रहा है, या एक्टिवली सुन रहे हैं, समझने के लिए सुन रहे हैं, या वापस उत्तर देने के लिए सुन रहे हैं। तो इन सब चीजों में फर्क होता है, और एक्टिव लिसनिंग को भी डेवलप करना चाहिए। तो पेशेंस के साथ साथ एक्टिव लिसनिंग, है ना। जब आपको कोई रिक्रूटर या एम्प्लॉयर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है इंटरव्यू में, तो आपने उस क्वेश्चन को समझे बिना, पूरे क्वेश्चन को सुने और समझे बिना, आपने सोचा कि पहले जो 3 शब्द बोले अब मेरे को तुरंत जवाब देना है। तुरंत जवाब देने के उतने नंबर नहीं मिलते जितना कि आपने सुनने के बाद, उसको समझने के बाद क्या उत्तर दिया। और अगर आपको नहीं आया तो आपने बहुत ऑनेस्टली कह दिया कि मुझे नहीं आता है। तो सामने वाला भी दाल रोटी खाता है, समझता है, तो उसको चक्कर में डाल के कुछ घुमा घुमा के जवाब नहीं देना, बट नहीं आता तो बता देना कि नहीं आता, राइट। तो ऑनेस्टी भी देखी जाती है। तो कम्युनिकेशन में ये सब चीजें आती हैं जो कि स्टूडेंट्स के लिए डेवलप करनी पड़ेंगी। सेकेंड थिंग इज अबाउट बिहेवियरल असेसमेंट, एंड मैंने कहा था स्टूडेंट्स के लिए, जब मैंने कहा था, तो बिहेवियरल असेसमेंट में बहुत सारे टूल्स होते हैं, साइकोमेट्रिक टूल्स होते हैं, जो कि आप स्टूडेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स और पर्सनालिटी के लिए उनको यू कैन रन देम थ्रू द स्टूडेंट्स, और उससे भी पता चलता है कि XYZ किस चीज में अच्छा है या किस चीज में अच्छा नहीं है, क्या चीज डेवलप करनी चाहिए, उसका क्या वैल्यू सिस्टम है। तो ऐसे बहुत सारे टेस्ट हैं, बिहेवियरल असेसमेंट है, उसको भी इंटीग्रेट करना चाहिए करिकुलम में, और टू मेक देम फ्यूचर रेडी एंड एम्प्लॉयबल। कम से कम ऐसा माना गया है कि बिहेवियरल असेसमेंट से 70% मैच मिल जाता है इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड फ्यूचर जो जॉब है। तो दिस इज अ वेरी गुड टेक्निक। सम इंस्टीट्यूट्स फॉर एग्जांपल असेसमेंट सेंटर्स करते हैं, डेवलपमेंट सेंटर्स करते हैं, इंटीग्रेट किया हुआ है अपने करिकुलम में। तो जो भी टूल्स हैं, और फैकल्टी बहुत यहाँ पे बहुत अच्छी है, बहुत क्वालिफाइड है, तो वो इसके बारे में ध्यान देके और स्टूडेंट्स की इससे मदद करें। the other thing for faculty is career services। तो जैसे आज आपने ये वेबिनार ऑर्गेनाइज किया, आप थोड़ा सा स्टूडेंट्स के साथ करियर सर्विसेज और काउंसलिंग को भी इंटीग्रेट करें, कि उनकी मेंटल हेल्थ और वेलनेस के ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट्स कहाँ से हैं, और कनेक्टिविटी है नहीं है, और यही ऑनलाइन। और इसमें परेशान होने की बात नहीं है स्टूडेंट्स और फैकल्टी के लिए, क्योंकि ये हमारे यहाँ ही नहीं, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, सभी ने कह दिया है कि अगले 1 साल तक सब क्लासेस ऑनलाइन ही होंगी। तो मतलब किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस होंगी। तो हम इनको कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, जो स्टूडेंट्स का स्पैन ऑफ अटेंशन है, और इसमें हम किस तरह से उनकी काउंसलिंग करते हुए उनको ऑप्शंस बता सकते हैं, करियर ऑप्शंस।
ट्राइड एंड टेस्टेड ऑप्शंस की जगह आजकल और बहुत तरह की फील्ड्स आई हुई हैं, तो उसका हम कैसे उपयोग कर सकते हैं। ऑल्सो अगर जैसे इंटर्नशिप्स नहीं अरेंज हो सकती, कंपनीज नहीं एंटरटेन कर रहे हैं, तो आप क्या लाइव केस स्टडीज कुछ सिमुलेट करके और फिर आप इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का उस क्लासरूम में बुला के, वर्चुअल क्लासरूम में बुला के उन सिमुलेटेड एग्जाम्पल्स के साथ में डिस्कशन करवा सकते हैं। जो एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स को इन द कंपनी होता था, वो उसी को आप सिमुलेट करके केस स्टडी बना के क्लास में अगर बताएं, और उसके बाद उनको अगर उसका डिस्कशन चाहिए तो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को इनवाइट करके और स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन हो सकता है इसी तरह के वेबिनार्स वगैरह से। तो उससे भी बहुत रियल लाइफ वर्क प्लेस सिनेरियोज समझ में आएंगे, क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, और लर्निंग कंटिन्यूअस हो सकती है। दूसरी चीज मॉक इंटरव्यूज। तो वर्चुअली मॉक इंटरव्यूज, जैसा मैंने बताया, इंटरव्यूइंग विल बी वर्चुअल, तो उसकी प्रैक्टिस स्टूडेंट्स के लिए पहले फेस टू फेस मॉक इंटरव्यूज होते थे, अब वर्चुअल मॉक इंटरव्यूज की कैसे उन्हें इंटर्नशिप्स के लिए या फाइनल जॉब्स के लिए किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए। तो कुछ एक ये चीजें हैं, बहुत सिंपल हैं, डजंट, और आप करते ही होंगे पहले फिजिकली फेस टू फेस। अब खाली ये है कि उसका तरीका बदल जाएगा, एंड ये भी करिकुलम के साथ इंटीग्रेट होना जरूरी है। सो आई एम कॉग्निसेंट ऑफ द टाइम, मैं काफी देर से बोल रही हूँ, बट कुछ एक टिप्स मैं और देना चाहूंगी। ये तो कुछ स्ट्रैटेजीज मैंने बताई स्टूडेंट्स और फैकल्टी के लिए। So once again, a very good CV, writing a good CV relevant to the job, so tailor making it to the job that you're applying for. दूसरा, हमें ये नहीं सोचना है कि अब ये सिचुएशन कब चलेगी, कैसे चलेगी। तो जैसे पहले कहा जाता था AD और BC, बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी, ये टाइम बताया जाता था। अब होगा AC और BC, बिफोर कोरोना और आफ्टर कोरोना। ये जो है, मतलब AD और BC रहेंगे, बट अभी BC का हो गया है बिफोर कोरोना एंड आफ्टर कोरोना। तो these are the times, these are difficult times, okay, and कोई टेक्स्ट बुक नहीं है कि इसको कैसे पार करना है, किसी ने टेक्स्ट बुक नहीं लिखी है। मतलब मैडम पूछ रही थी मैं ऑथर कैसे बन गई, वैसे एनीबडी हु लुक्स एट मी सेज आप ऑथर नहीं दिखती हैं, आई एम जस्ट ऑथर बाय एक्सीडेंट, और एक नहीं मैंने 3 लिख दी। सो आई डोंट नो हाउ दैट हैपेंड। और पहली किताब तो HR पे है, रियलिटी बाइट्स, द रोल ऑफ HR इन टुडेज वर्ल्ड। वही रियलिटी बाइट्स प्लस हिंदी में है, रियलिटी बाइट्स वर्तमान समय में मानव संसाधन की भूमिका। तो ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस को, उसके बारे में लिखा है। और स्टूडेंट्स, एकेडमिशियंस, अर्ली करियर प्रोफेशनल्स, उन सभी के लिए, राइट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अभी जो है वो रियलिटी है। आप पहले से बेंचमार्क नहीं कर, पहले ऐसा होता था, पहले एम्प्लॉयर ऐसे करता था, पहले हम क्लास ऐसे लेते थे, उसका कोई रेलेवेंस नहीं है, बिकॉज वो पहला अब डिसॉल्व हो चुका है। अब जो कुछ भी है आप उसको कह सकते हैं कि बिफोर कोरोना ऐसा होता था, बट अब ऐसा होगा। सो दिस इज, यू आर एक्चुअली एस्टैब्लिशिंग अ न्यू फाउंडेशन नाउ, ओके। तीसरा ये है कि इसमें दुखी या परेशान होने की कोई बात नहीं है। द गुड थिंग इज, इसमें एम्बिग्विटी है, अनसर्टेनिटी, और सभी एक ही नाव में चल रहे हैं, सब एक ही नाव में नैया पार लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और भारत हो या रशिया हो या चीन हो या अमेरिका हो, सारे के सारे नंबर बढ़ रहे हैं रोज, और सब लोग नए नए तरीके से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। So nobody really has a playbook, या nobody has a manual की how to deal with this. So there's no need to panic, no need to
वरी अबाउट इट, कब तक चलेगा? सबसे बड़ी बात है कि जान है तो जहान है। सुरक्षित रहिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने आसपास वालों को सुरक्षित रखिए, पॉजिटिव सोचिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, और आपको जो करना है वो करिए, करते रहिए। प्रयत्न में कहीं कमी नहीं आनी चाहिए, लगन में कहीं कमी नहीं आनी चाहिए। इन चीजों की पे लॉकडाउन नहीं है, इन चीजों पे वेकेशन नहीं है। ये समय अगर व्यर्थ किया तो ये वापस आने वाला नहीं है, इस बात की गांठ बांध लीजिए। और अपने आप को आइसोलेट करने की भी जरूरत नहीं है कि अरे हम इस कॉलेज से पढ़ रहे हैं, अब हम इस शहर में रहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। ये जो टूल्स हैं ये सभी के लिए अवेलेबल हैं। आपके फैकल्टी आप लोगों को जैसे माला में मोती पिरोते हैं उसी तरह से पिरो के सबको बांध के रखने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी आपके साथ सीख रहे हैं, तो उनके पास भी जवाब नहीं है। एक दूसरे को ये समझ कि वो भी समझ रहे हैं, वो भी हमसे एम्पैथाइज कर रहे हैं, और हमको भी उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए। ये जज्बा हम स्टूडेंट्स में अगर होगा तो हम लोग सब मिलके विन विन क्रिएट करके इससे सिचुएशन से बहुत सक्सेसफुली बाहर निकलेंगे। और जरूरी नहीं है कि किसके कितनी बड़ी जॉब लग रही है, कहाँ लग रही है। फिलहाल तो जिसके पास जो है आपको उसमें संतुष्ट और खुश रहना चाहिए। जब समय बदलेगा तब फिर आगे बढ़ेंगे। मैंने बोला कि लक्ष्य की तरफ ध्यान होना चाहिए, प्लान ए हमेशा रहना चाहिए, बट संकट के समय आप अगर आपको प्लान बी और प्लान सी पे काम करना पड़े तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। बट प्लान बी और प्लान सी यही समय है जबकि बना के तैयार रखना चाहिए, क्योंकि हमें कभी भी एक्टिवेट करना पड़ सकता है। दूसरा, ईगो की जरूरत नहीं है। ईगो से नुकसान ही होता है, भला आज तक किसी का नहीं हुआ है। तो स्टूडेंट्स हो या किसी और में, अगर हो तो उसको रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए, या शिप्रा में डाल दीजिए, या नर्मदा में डाल दीजिए, कहीं भी डाल दीजिए। हम लोगों को किसी के भी सामने झुक के और उनसे अगर कुछ ज्ञान प्राप्त होता हो, उनसे अगर कुछ सीख मिलती हो तो हमें लेना चाहिए, भले ही वो एम्प्लॉयर हो या फैकल्टी हो या घर के बड़े हो या बाहर का कोई हो। तो इसके लिए हमारा जो वैल्यू सिस्टम का बैरोमीटर है वो बिल्कुल सही जगह पे होना चाहिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि मुश्किल के समय वो कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो क्या है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस रहेंगे, हमें अच्छे बुरे का समझ नहीं आएगा, हम लोग स्वे हो जाएंगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। वो सब हमें चक्कर में नहीं पड़ना है। हमारे फैकल्टी, हमारे सीनियर्स, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हमें जो बता रहे हैं, हमको विनम्रता से उनसे समझना चाहिए, सीखना चाहिए। हम तर्क कर सकते हैं, हम सवाल कर सकते हैं, पर हमें उलझना नहीं है, क्योंकि उलझने से सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। राइट? सो ये कुछ एक चीजें थी। और I'd like to end, मैंने आपको स्टोरी के साथ शुरू किया, बट I'd like to end with a quote। और कहते हैं कि रास्ते कहीं नहीं जाते, मुसाफिर को चलना पड़ता है। आप और मैं मुसाफिर हैं, तो रास्ते तो वहीं रहते हैं, द रोड लेस ट्रेवल्ड। ओके, रास्ते वहीं रहते हैं, मुसाफिर को चलना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती कामयाबी हर किसी को, हर किसी को यूं ही नहीं मिलती कामयाबी। हर उगे सूरज को शाम को ढलना पड़ता है। सूरज सुबह उगता है, शाम को ढलता है। इम्तिहान की आग में हर किसी को जरूर जलना होता है। तो इम्तिहान है, मुश्किल समय है, और इसका तरीका यही है कि हमको इम्तिहान में से गुजर के ही जाना पड़ेगा, और हम लोग जरूर पास होंगे और कामयाब होंगे। तो these were some thoughts I thought। 40 मिनट का समय मुझे दिया गया था,
मैंने आई थिंक टाइम मेरा हो गया है। मैं आई होप जो स्टूडेंट्स के लिए और फैकल्टी के लिए जो मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती थी, आई होप मैं अपनी बात कह पाई और कम्युनिकेशन स्किल्स में पास हो गई मैं, हिंदी में भी, और जैसा मैंने कोशिश की। इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि सरल भाषा में सीधी सीधी बात कहनी है। वो कंसल्टेंट्स का काम होता है कि पहले चीज को कॉम्प्लिकेट करो, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करने के वो पैसे लेते हैं, राइट? तो वैसे ही ऑलरेडी इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो लाइफ शुड बी सिंपल, बात भी सिंपल होनी चाहिए। और मतलब मनुष्य का जीवन है, सिंपली रहे तो ज्यादा अच्छा है, सबकी समझ में भी आता है क्या बात है। I'd be more than happy to answer any questions that you have, faculty or students में से, and you know, अगर if you agree, if you have any comments, please feel free to share. चेयरमैन सर, आप भी बता सकते हैं। मैं 2 मिनट लूंगा केवल। जी। एक बहुत अच्छे श्रोता के रूप में मैं बहुत अच्छे वक्ता को सुन रहा था, मंत्रमुग्ध सा सुन रहा था। एक जो कहानी आपने स्टार्ट किया, लगभग यही बात है। मैं भी अपने स्टूडेंट्स के साथ में इंटरेक्ट करता हूँ, मेरे पास शब्दों का उतना जाल नहीं रहता, इसलिए लिख नहीं पाता और आपके जैसे डिस्क्राइब नहीं कर पाता। जी जी। ध्रुव की जब बात कही आपने, तो मेरा भी ये कहना रहता है कि आपका कोई विकल्प ना हो तो आपको कोई कभी खतरा नहीं होता। कहीं पे भी आप पैदा हुए हों, कहीं पे भी आप साधन संपन्नता हो या ना हो, लेकिन आपका अपरिहार्य होना बहुत आवश्यक है। आपको इतना प्रतिभा संपन्न होना बहुत आवश्यक है, जो कि ध्रुव ने करके दिखाया था अपनी माँ के कहने से। दैट इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मोटिवेशन। और मैं आपको बता दूं, हमने जो स्किल्स की बात कही, तो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के हम अधिकृत एक पार्टनर भी हो गए हैं, जिसमें आज की जो पोस्ट कोविड आपने रिक्वायरमेंट बताई हैं, कुछ सेक्टर्स बताए हैं, हेल्थ केयर सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, हॉस्पिटलिटी सेक्टर हैं, इन सब सेक्टर्स के हम एडिशनल वैल्यू एडेड कोर्सेज भी, जो कि सर्टिफाइड कोर्सेज हैं, शॉर्ट टर्म भी हैं, लॉन्ग टर्म भी हैं, वो भी हम करवा रहे हैं, ताकि ये एडिशनल स्किल इनको बनी रहे, इंजीनियरिंग के साथ साथ या मैनेजमेंट कोर्सेज के साथ साथ। CII के हम MCC, मतलब जो मॉडल करियर सेंटर है अपना जॉब, तो उसमें भी हम उनके पार्टनर हो गए हैं। उनकी भी जो रिक्वायरमेंट होती हैं, चाहे स्किल्स की हो, चाहे और किसी संदर्भ की हो, हम अपने स्टूडेंट्स के बेटरमेंट के लिए 6500 प्लस कंपनीज के साथ में, जो कि ऑटोमेटिकली जो CII के मेंबर्स हैं, दे ऑल आर रेडी टू हेल्प आवर स्टूडेंट्स। और सबसे बड़ी बात जो आपने कही कि इस कोविड के पीरियड में अपने आप को पहचान लें, वही अपने से संगत कर लें, तो ये इतनी बेहतर बातें डॉक्टर अपर्णा शर्मा आपने कही, कि जो कि हमारे यूथ अगर इनको आत्मसात करके देखे, आत्म अवलोकन करके देखे कि ये कही गई बातें, ये ऐसा नहीं है कि हम लोग पुरानी पीढ़ी के हो गए तो बोलते रहते हैं, ये हमेशा ही इनकी प्रासंगिकता रहती है। और हमारे साथ जितने भी हमारे छात्र समुदाय जुड़ा हुआ है, जितने भी लाइव देख रहे हैं फेसबुक पे, सभी से मैं अनुरोध करता हूँ कि हम बुजुर्गों की या पहली पीढ़ी की बातें व्यर्थ में ना समझें, और सभी से अनुग्रह है, सभी से अनुरोध है कि इन बातों का सार जो है अपने अंदर लें, और जो इसका कम्युनिकेशन का एक दायरा है इसको बढ़ाएं। कम्युनिकेशन शब्द का जो व्याख्या है इसका विस्तार से देखें, और अपनी स्किल्स को बढ़ाएं और मोटिवेट हों, प्लान A, B, C सभी के लिए तैयार हों, और संकट से मुक्त होने की के लिए तैयार रहें। धन्यवाद डॉक्टर अपर्णा। डॉक्टर रोमी प्लीज। Yes, sir, I'm still Rumi for you. Ma'am, really interesting session, more than anybody else. हम टीचर्स को काफी कुछ सीखने को मिला। आपने जो पॉइंट्स बोले हैं कि बच्चों का बिहेवियरल असेसमेंट्स होना चाहिए, स्किल
क्लैरिटी होनी चाहिए कि उनके पास क्या स्किल्स है, उसको ऑप्टिमल यूसेज, सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करना है, माइंडफुली हार्ड वर्क करना है. सो ये सारे जो टेक अवेज हैं, ये आई थिंक फैकल्टीज के लिए भी इतना ही इंटरेस्टिंग सेशन रहा जितना कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए है. Now I open the session for students to ask questions, both students and faculties, because I think we are inert learners. We are in the profession of learning. So any questions from faculties and students, we are open for the session. I already have one question, ma'am. Sanchita is asking, madam, at this time, all industries are doing retrenchment because they do not have enough money to give employees salary. So is it possible that they will hire freshers like us that will incur more investment for them? So it's not true that all industries are retrenching and not paying salaries, etc. You have to discount a lot what you see in the media. Like I said, आपके mentors, आपके network में आप देखिए, it's not true. Okay, तो ये गलत है कि हर जगह retrenchment हो रहा है. बहुत सारी organizations में senior management salary cuts हुए हैं, and up to a certain cost to company CTC वहाँ पर cut हुए हैं, या increments नहीं मिले हैं, या bonus नहीं मिले हैं. The companies are looking to hire, and why will they hire? देखिए लॉजिकल है क्योंकि कोई भी समय इस तरह का समय भी हमेशा नहीं चलेगा. तो आगे जाकर I'm not saying all companies will hire, but there will be, and I pointed out the sectors कि जो sectors हैं उन sectors में वो लोग definitely, अगर पहले वो लोग 20 हायर करते थे तो शायद अब 10 ही हायर करेंगे, बट वो लोग डेफिनेटली हायर करेंगे टू ट्रेन पीपल फॉर द फ्यूचर. एंड इसीलिए वो कुछ एक स्किल सेट्स, नए स्किल सेट्स ऐड होने चाहिए सो दैट यू कैन डिस्टिंग्विश योरसेल्फ फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स. वो अगर आप सीख लेंगे तो आपको डेफिनेटली यू स्टैंड अ चांस टू गेटिंग हायर्ड. All right, but मैंने ये भी कहा कि competition will be much more. I said that as point 2 कि competition है, तो that is definitely there. Jobs will be lesser, all right, but there are more options, and that is why you have to keep your ears to the ground and eyes open to see कि कौन से sectors हैं, कहाँ हो रहा है. Companies are in fact going to campuses also. Campus recruitment is also happening for the next cycle. All right, सब जगह नहीं हो रहा है. हमें ये भी realistic होना चाहिए ना कि everybody cannot go and work for TCS and Accenture and Infosys and Wipro, right? उसके अलावा भी companies हैं. तो startups wind up हो रहे हैं, बहुत सारी दूसरी companies हैं, but मैंने आपको जैसे बताया कि कुछ एक sectors में है तो उन sectors पे focus करना है. Right? I hope I answered that question. There's another question I see from Saurabh Singh, which is on the chat. He's saying, what would be more beneficial at this lockdown period, upgrading or enhancing skills, or working from home experience? So, my dear Saurabh, there is no either or. अगर आप 24 घंटे में 48 घंटे का काम कर सकते हैं तो आप जरूर ही मैन बन सकते हैं, और आइदर और नहीं है. अगर आपको वर्क फ्रॉम होम एक्सपीरियंस मिल रहा है आपको वो भी करना है, और अपग्रेडिंग एंड एनहांसिंग तो आपको करना ही करना है. उसका तो मतलब देयर इज नो सब्स्टिट्यूट. वो क्वेश्चन ही नहीं होता कि करना है या नहीं करना है. ओके, बट अगर आपको वर्क फ्रॉम होम का भी कोई अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो वो 24 घंटे की अपॉर्चुनिटी नहीं होगी. दैट विल बी 6 hours 8 hours व्हाटएवर, डिपेंडिंग ऑन किस तरह का अपॉर्चुनिटी है. तो बाकी समय में आपको एनहांस और अपग्रेड तो करना ही है. सो आंसर इज नॉट आइदर और, इट इज अपग्रेडिंग एंड एनहांसिंग skills and working from home if that is possible. Right. Ma'am, one more question from Chitranshi Srivastav. She's asking, my question is that, is there a situation of securing job
with important skills that I can acquire as my USP. Yeah, I guess she's wanting to ask what are the important skills that right now students can acquire and make it their USP. So again, I don't know whether she's from engineering or MBA or which field. Okay, but I did. She's from management. She's from management. Okay, so depending on whatever, if she's in first year or second year, मैंने कुछ skills बताए, soft skills जो बताए. I think वो develop करना जरूरी है, because you know, everybody responds to this situation very differently. ऐसा नहीं है सॉफ्ट स्किल की मैंने आज कहा तो you know कल डेवलप हो जाएगा. सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करने में टाइम लगता है. तो हो सकता है बाय द टाइम आपका सेशन कंप्लीट हो ये एकेडमिक ईयर, आपने उसमें से 20% या 30% ही डेवलप किया हो. और मैंने बहुत सारी चीजें बताई हैं इन टर्म्स ऑफ सॉफ्ट स्किल्स में भी क्या डेवलप करना है. तो आई थिंक टू गो बैक, आप पहले एक असेसमेंट अपने फैकल्टी के साथ में करिए, और साथ में ये जो स्किल्स मैंने 8-10 स्किल्स मेंशन किए वो डेवलप करिए. फॉर एग्जांपल लीडरशिप स्किल्स, अभी करंट पीरियड में how can you learn and develop leadership skills? Okay, तरीका है उसका भी, जरूरी नहीं है कि आपको क्लासरूम में ही करना है, बट वर्चुअली भी आप कर सकते हैं, आपकी कम्युनिटी में कर सकते हैं, आपके घर में कर सकते हैं. तो that is why what I said is you know, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि आपने आज ये बटन दबाया तो कल उसमें से ये आउटपुट निकलेगा. इन सब स्किल्स को डेवलप करने में टाइम लगेगा है, और इसीलिए एक स्टूडेंट का दूसरे स्टूडेंट के यूएसपी में हमेशा फर्क रहेगा. ऑलराइट, एंड इट्स अ पाथ व्हिच इज यू नो इट्स अ लर्निंग जर्नी. ओके, सो ऐसा नहीं है कि फैकल्टी या हमने भी पूरा डेवलप कर लिया है, हम लोग भी रोज रोज सीखते रहते हैं. राइट, तो लर्निंग एटीट्यूड रहेगा तो ऑटोमेटिकली यूएसपी बनेगा. Right, ma'am. Ma'am, one more question. He's asking, Adrit is asking how to prepare for virtual interviews. What are the prerequisites for preparing? Sorry, ma'am, say that again. How to prepare for virtual interviews, ma'am? How to prepare for virtual interviews? So, madam, like I mentioned, mock interviews आपको करने पड़ेंगे, और I think faculty will have to train you with those mock interviews. कि अब जैसे virtually है, I don't know how many, आधा से ज्यादा लोगों के तो वीडियो ऑफ है, but I'm sure आप लोग मुझे देख रहे हैं. तो you know, are you looking into the screen? Are you fidgeting? You know, are you nervous? और आप impatient हो रहे हैं? Okay. तो अभी भी ऐसे ट्रेट्स हैं जो कि वर्चुअली भी देखे जा सकते हैं. तो आई थिंक इसके ऊपर एक अलग सेशन होगा. यू नो, आई कैन नॉट रिस्पॉन्ड यहाँ पर कि कैसे प्रिपेयर करना है, बट जैसे मैंने कहा कि फैकल्टी विल हैव टू वर्क विद यू टू डेवलप दिस स्किल, बिकॉज इट्स अ स्किल इन इटसेल्फ. देयर इज अनदर क्वेश्चन फ्रॉम साक्षी. To take up the lead better in marketing and sales executive, is online jobs better to initiate, especially for beginners? मतलब basically question is marketing और sales executive के लिए. देखिए, marketing और sales executive अभी मॉल में है या कहीं स्टोर में है, वहां तो जॉब्स अभी फिलहाल मिलना मुश्किल है. इनफैक्ट वहां डाउन साइज कर रहे हैं. I don't want to name companies, but जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं, बड़े बड़े रिटेल चेन्स हैं, वहां पर एक्चुअली सेल्स क्योंकि डाउन है, इसलिए सेल्स वालों को रिट्रेंच किया जा रहा है. सो दैट्स नॉट गुड न्यूज. बट वो लोग ऑनलाइन सेल्स चालू कर रहे हैं. उन्होंने एक्सप्लोर किया होगा कि करंट सेल्स एग्जीक्यूटिव क्या ऑनलाइन सेल्स कर सकते हैं. बट देखिए, रिट्रेंच इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये फंजिबल स्किल नहीं है. जो आदमी फिजिकल सेलिंग करता है वो ऑनलाइन सेलिंग नहीं कर पा रहा है. इसीलिए मैं कह रही हूं कि आप अभी
इस अपॉर्चुनिटी का फायदा लीजिए। और बिगिनर्स के लिए ऑनलाइन जॉब्स एब्सोल्युटली आपको मिलेंगे भी जॉब्स। Was on a webinar yesterday where COO of Barista Coffee, CFO of Grofers, ये जैसे कि चेन्स हैं, वो बता रहे थे कि उन लोगों के यहाँ पे किस तरह के ऑनलाइन जॉब्स हैं, किस तरह के ऑनलाइन चैलेंजेस हैं। तो बिगिनर्स के लिए ऑनलाइन सेल्स एंड मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। और दे आर ऑलवेज, Amazon, Flipkart इज ऑलवेज लुकिंग टू हायर पीपल, राइट? तो कम्युनिकेशन डेवलप करेंगे अपना, वर्बल और रिटन, तो आपको बहुत बहुत मदद होगी इन जॉब्स के लिए। That's nice, ma'am. One very different question that has come up from Himanshu Chauhan. He's asking, madam, what is the toughest decision you have ever made? There have been so many. Okay, so as an HR person, I mean, I must, मैंने honesty की बात कही तो when I have hired people in jobs, and I've hired maybe across my career maybe over 1 lakh of people, okay, in different roles. But the most difficult decision and the role is when I am asked to actually lay off people because of restructuring. तो पहले पैंडेमिक नहीं होता था, बट ऑर्गेनाइजेशंस में रीस्ट्रक्चरिंग हो गई तो जॉब्स जाते हैं। बिकॉज हम एक तरफ कह रहे हैं कि आपको एम्पैथी और इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए, तो उसी तरह से किसी का जॉब जाता है तो उसके पेट पे लात पड़ती है और उसमें बहुत तकलीफ होती है। तो इट इज पार्ट एंड पार्सल। एचआर में सबसे बड़ा कहा जाएगा कि नेसेसरी ईवल ये है कि एक तरफ आप बहुत लोगों की मदद करते हो, बट दूसरी तरफ आपको ये काम भी करना पड़ता है। एंड रात को नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, बहुत तकलीफ होती है ये काम करने में। Very honest answer, ma'am. Thank you so much. Any other questions from the faculty's end, if anybody wants to ask question? This Subhash Masi, can I ask a question, ma'am? Yes, yes, please, sir. Ma'am, आपने प्लान B और C बताया था, like you said कि प्लान A is important, but at times A को छोड़ के जब B और C प्लान फॉलो करते हैं तो A पे फोकस कैसे बना के रखें? At times A seems to be very far away, okay? Because when you are at plan B, plan C, at time plan E, F, G, H also आ जाता है। नहीं सर, वो बहुत लंबा प्लान हो जाएगा। मैं मतलब मुझे ABCD में 26 अल्फाबेट्स हैं, बट मैं C तक ही लिमिट करती हूँ। I'll give you an example, sir. I'll give you an example. So for example, okay, I'll talk about, और ये मैंने क्यों कहा, I wanted to be a civil servant. मैं IAS में जाना चाहती थी, and that was plan A, okay. And मैंने हमेशा उसी तरह की तैयारी की और मैं वो ही चाहती थी। बट जब मेरा समय आया एग्जाम देने का, तो मंडल कमीशन, आज के स्टूडेंट्स तो जानते भी नहीं होंगे, आजकल के स्टूडेंट्स जानते भी नहीं होंगे, उस समय पे करा था। हाँ, तो उस समय पे मंडल कमीशन हो गया और एग्जाम्स नहीं हुए। ओके, हाँ, वीपी सिंह गवर्नमेंट के टाइम में। तो अभी 2 चीजें हुई। उस वक्त आपको यूपीएससी देने के लिए 21 इयर्स होना पड़ता था एज ऑफ 1 अगस्त। ओके, एंड मुझे माय बर्थडे फॉल्स इन सितंबर, तो मुझे उसके लिए 1 साल रुकना पड़ता। ओके, तो जब मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, सो दैट इट वुड हैव मेंट कि मेरा 1 साल वेस्ट होता, और फिर ये मंडल कमीशन हो गया। तो उस समय पर एक्चुअली एग्जाम्स नहीं हुए। तो अगर मैं पकड़ के बैठती कि नहीं मुझे यही करना है और अब मैं अपना भले ही बैठी रहूंगी उसमें कि प्लान ए है,
तो प्लान बी और सी था कि प्लान बी था कि भाई फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, ओके, एंड जॉब करके अपने पैरों पे खड़े होने का ऑब्जेक्टिव यही था, ऑब्जेक्टिव ये था कि पैरों पे खड़े होना है। अब अगर प्लान ए से नहीं हो रहा है बिकॉज ये सब समस्याएं आ गई हैं, तो अपना साल भी बर्बाद नहीं कर सकते और एग्जाम कब होगा ये भी नहीं पता था। तो that is when I decided that I will appear for exams, and the only exam I gave was TIS, and I got through. I worked very hard for it. Okay, out of 10,000 applicants, only 30 students are selected. मतलब उस साल में 1994 में 10,000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था और वो लेते खाली 30 सीट होती हैं। तो आई मेड इट इन दैट, ओके। और हमेशा ये गोल था कि प्लान ए ही जाना है, बट प्लान बी पे काम किया, एडमिशन लिया, 2 साल पढ़ाई की और उसके बाद जॉब लग गई, ओके। और तब आईएएस में ऐसा था कि 38 इयर्स तक आप एग्जाम दे सकते हैं, ओके, आप दे सकते हैं। बट वंस आई स्टार्टेड वर्किंग इन एचआर, मुझे ऐसा लगा कि आई कैन कंट्रीब्यूट मच बेटर एंड आई एम इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड। मैं यही करना चाहूंगी rather than deal with red tapeism, bureaucracy and all the politics, okay? क्योंकि वो मुझे तब आइडियल लगा था। जब मैं इस फील्ड में आई मुझे ये ठीक लगा। एंड देन आई वर्कड ओवरसीज फॉर सेवरल इयर्स। मैं बाहर काम करती थी, तो मैं वो एग्जाम नहीं दे पाई और मैंने वो एग्जाम नहीं दिया। तो प्लान बी पे काम किया, ओके, एंड that's where it is. गोल था वो, ओके, बट ये जो किया है ये भी इक्विवेलेंट है टू दैट। वन इज डूइंग as well and probably in a different capacity. Okay, yeah, it's that's very more of fulfilling. redefining your goal. Yes, so that's what I mean कि भाई एक अगर रास्ता बंद हो गया तो आपको कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा, प्लान बी रहना पड़ेगा। प्लान डी ई तो बहुत लंबा है, फिर तो वो ऑप्शंस हो जाते हैं कि चलो ये नहीं तो ये और ये नहीं तो ये वाली बात है, ओके, राइट। अनसर्टेन है तो क्या कर सकते हैं। मेरे साथ के बहुत लोग थे जिन्होंने 2 साल तक वेट किया कि नहीं एग्जाम होगा, तो वो प्रिपेयर करते रहे, फिर वो डिप्रेशन में चले गए। तो इन सब चीजों के बहुत सारे रेपरकशंस भी होते हैं। वेरी ट्रू, राइट। थैंक यू मैम। Sure. Thanks a lot. Thank you. I think everything, all the students have. I guess there are no more questions. Last Anything round from of the call. faculty? Any questions from the faculties? मैडम जी, विक्रांत प्रणाम मैडम। जी सर। प्रणाम मैडम। हाँ जी सर। जी, पवन अग्रवाल, विक्रांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ग्वालियर से। जी। जैसा कि मैडम अभी चल रहा है कि हम आपदा से जूझ रहे हैं सभी लोग, पर एक इसका दूसरा छोर ये भी होता है कि आपदा में अवसर की हम अक्सर बात करते हैं। अभी जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बीच में जो स्टूडेंट्स हैं सभी कैटेगरी सभी वर्गों से हैं, तो कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनके पेरेंट्स के जॉब चले गए या जिनके बिजनेस वगैरह नहीं कर पा रहे हैं, शॉप्स वगैरह ओपन नहीं हो पा रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे हैं। ऐसे में बच्चों के लिए अपन कैसे मैसेज कर पाएं कि नहीं ये समय ऐसा है कि कुछ अपन अपने आप को अपडेट करके और आगे अपन बढ़ सकते हैं, आपदा में अवसर को बदल सकते हैं। क्योंकि समस्या क्या, अभी उनको कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है घरों के अंदर कि फाइनेंशियली शायद खाने पीने की भी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो फिर ऐसे में हम क्या उनको एक मैसेज देना चाहेंगे कि इससे उभर कर और एक कुछ अच्छा कर पाए वो अपने लिए। नहीं तो सर मैं समझती हूँ आपने जो परेशानी की बात कही है, और आई थिंक मैंने पूरे सेशन में ही जो बहुत सारे मैसेजेस दिए वो इसी तरह के मैसेजेस दिए हैं। और मैं ये कहूँगी कि खुद को अपडेट करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए हमें कोई भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। बहुत सारी ऑनलाइन चीजें फ्री हैं जिनको कि आप यूज कर सकते हैं अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। पर मैंने जैसा कहा कि
कोशिश तो करनी पड़ेगी। हिम्मत हार के अगर बैठ गए तो और मैंने कहा कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और मैं समझ सकती हूँ कि और मैंने आपको कहा पापड़ बेले हैं, मैंने बहुत डिटेल में नहीं कहा, पर हमने भी ऐसा समय देखा है कि जब हमारे पास जब हमारी मेस बंद होती थी टिस में, तो हमारे पास 10 रुपए होते थे और चॉइस ये थी कि या तो आप 2 वड़ा पाव खा लो या आप वो बचा लो ताकि आप बस का टिकट खरीद सको। तो मतलब बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, मैं 1994 से 1996 की बात कर रही हूँ, तो मैंने भी ऐसा समय देखा है जहां पर बिल्कुल हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन होती थी। पर देखिए मतलब अगर आप थक के हार के परेशान होके और आप सोचो कि ये इससे हम कैसे मतलब ये तो बहुत परेशानी वाली बात है, तो कभी हमने बचाया, कभी हमने खाया और कभी 2 की जगह हमने 1 ही खाया और चलाया इसी तरह से। तो वो जो 2 साल में जो कमी देखी, जो कुछ भी देखा, उससे ये और दृढ़ हो गया कि भाई हमको अपने पैरों पे खड़े होके, और उससे आपको रिसोर्सेस की वैल्यू समझ में आती है। मैंने कहा समय एक रिसोर्स है, पैसा एक रिसोर्स है, लर्निंग एक रिसोर्स है, ये सभी चीजें रिसोर्स हैं। तो सर मैं आपसे कहूंगी, आप फैकल्टी हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों का मनोबल बढ़ा के रखने के लिए आपको उनसे कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेट करना चाहिए, हिम्मत बंधानी चाहिए। और आई थिंक अपने पर्सनल एग्जाम्पल्स या आसपास के एग्जाम्पल्स बता के उनको हिम्मत देनी पड़ेगी। और ऐसी ही चीजों की तरफ बढ़ाइए जिनमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट उनको ये समझाइए कि समय नहीं बर्बाद करना है। भाई ऐसा है, या तो हम अपने आप बहुत दुखी और परेशान और अपने आप पे दया करके हम समय बर्बाद कर सकते हैं, या फिर हमको मुकाबला करना है। और हमें अगर 3 टाइम खाने को नहीं मिले और 1 ही टाइम मिले और 2 दिन में अगर 1 बार मिले, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे दिन मैंने भी काटे हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एंड मतलब हर दिन शाम होती है तो अगले दिन सुबह भी होती है, तो ये कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा, बच्चों के तरीका। साथ लगातार संपर्क में बनने रहते हुए जी ठीक है, आप ये ठीक है परेशानियां चल रही, पर समय भी यही है आपके पास में, बिल्कुल उसको बिल्कुल साथ सर, में चलते हुए और कुछ नया करना, कुछ नया सीखते हुए आगे। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू मैम। थैंक यू मैडम। Thank you, sir. Yes. Ma'am, just we will take little more time from you. Yes. From Facebook viewers, we have some questions. I would Sure. request our Kuldeep sir, Professor Kuldeep, to take over those questions if ma'am can answer them. Thank you, ma'am. एक्चुअली हमारे व्यूअर्स ने एक क्वेश्चन पूछे हैं अपन मैम कि एक हमारे व्यूअर बोल रहा है कि ही वांट्स टू बी एन एंटरप्रेन्योर, तो इस साल वो एक स्टार्टअप लेने वाला था, लेकिन ड्यू टू दिस पैंडेमिक उसका पूरा जो प्लान है वो एक तरीके से फ्लॉप हो गया। तो अभी ऐसे सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि वो जॉब नहीं करना चाहता, ही जस्ट वांट टू बी द एंटरप्रेन्योर ओनली। तो देखिए, मुझे नहीं मालूम कि किस फील्ड में वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता था, या आई एम नॉट श्योर क्या स्पेसिफिक्स हैं, बट मैंने कहा प्लान ए प्लान बी। तो अगर आपका प्लान ए है कि आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं और अभी पॉसिबल नहीं है, तो आई थिंक आपको प्लान बी, और आप नहीं करना चाहते हैं इज वन थिंग, बट मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, ऐसा कहा जाता है। तो अगर आपको करना पड़े और आपको मिलती है, तो आपको कुछ समय के लिए अगर जॉब भी करना पड़े, तो आई थिंक देयर इज नो हार्म इन इट। उससे आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो आपके जब आप स्टार्टअप करेंगे तो उसमें वो एक्सपीरियंस काम आएगा। जीवन में कोई भी एक्सपीरियंस कभी भी जो है वेस्ट नहीं जाता है, ये मेरा मानना है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो इसके लिए प्लान बी ये है कि आप जॉब कर लीजिए, आप
बट मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप टाइम वेस्ट ना करें ये सोचते हुए कि मुझे ये नहीं करना है। ये एक वायबल ऑप्शन नहीं है। आप नहीं कर सकते, दैट्स अंडरस्टैंडेबल। जॉब ठीक है, जितना समय आपको करना पड़े उससे आपको वैल्यू एडिशन होगा, आपको कुछ आमदनी भी होगी, आपका सेल्फ एस्टीम बना रहेगा, और आपको जो भी एक्सपीरियंस मिला आपको यू कैन रीडिप्लॉय इट आपका जब एंटरप्रेन्योर बनने के लिए वो, और हो सकता है कि आपका जो एंटरप्रेन्योरल आइडिया हो उसके लिए भी आपको कुछ इनपुट्स मिले उस फील्ड से जहां पर भी आप हो। मैम एक और क्वेश्चन था, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इज राइटिंग कि एज सिंस यू बिलोंग्स टू द एचआर फील्ड, अभी ये बच्चा फाइनल ईयर में है, सो इज सेइंग कि फाइनल ईयर में होने के बाद अभी पता नहीं है कि ये सिचुएशन कब खत्म होगी, द पैंडेमिक सिचुएशन। सो हो सकता है 6 महीने लगे, हो सकता है 1 साल लगे, या कितना भी टाइम लगे, तो उनके ऊपर से जो फ्रेशर का टैग होता है वो हट जाएगा। तो फिर कैसे कंपनीज उनको ट्रीट करेंगे और इस प्रॉब्लम से कैसे वो बाहर निकलेंगे? बिल्कुल सही कहा सर कि मतलब किसी को पता नहीं है कि कितना टाइम लगेगा, और ये मतलब कंपनीज भी जानती हैं कि सिचुएशन खराब है, तो फ्रेशर का टैग ही रहेगा, फ्रेशर तो फ्रेशर ही रहेगा। ये समय कोई भूलने वाला नहीं है कि ये समय खराब था, खराब है, और आप इस टाइम पे पास होके निकले हैं। तो जहां पर आपको सब तरह से हाथ पैर मारने पड़ेंगे, हो सकता है आपको थोड़ा ज्यादा इंतजार करना पड़े जॉब के लिए, या मैंने जो फील्ड्स बताई आप उसमें कोशिश करते रहें, और जरूरी नहीं है कि आप जितने सीटीसी की जॉब चाहें उतने की ही मिले, उसकी अगर कम की मिले तो आप कम की लें, जैसी मिले, बट आपको कोशिश करके स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये टैग आपसे हट जाएगा, निकल जाएगा, कंपनीज कैसे व्यू करेंगी, आई थिंक सब लोग बहुत अच्छे से समझते हैं क्या हो रहा है, किसी के पास जवाब नहीं है, सब लोग कोशिश कर रहे हैं समझने की। तो मेरे को लगता है कि इनफैक्ट इस टाइम पे पास आउट होने से कंपनीज विल लुक एट यू मोर एम्पैथेटिकली। मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपका कोई नुकसान होगा, आपको फायदा ही होगा। Right, sir. Ma'am, over to you, Ramya ma'am. Yes, thank you so much, sir. And ma'am, a very long and interesting session, so much so that we actually, there was a time lapse. We could not realize that so much time we spent. It just looked like a fraction of seconds. And a wonderful session from you, ma'am. Now I would request our today's, the person who was behind the entire webinar program to be arranged, to be get coordinated with Dr. Satyanarayan sir to propose the vote of thanks. Ma'am, it was a wonderful session. It is making us to self-reflect, to a satsang karna hai humko sab, and haar nahi maana hai. With that, and plus this is the best time to utilize for learning, improving our communication skills, written and verbal. That is the message I'm giving to the students. And to be active listening. Okay, we have to develop this ability to actively listen to what the other person does. And as a faculty, we will start doing career surveys and counseling, and we will try to work on the behavioral assessment as well. So this is the best time to do the homework, so to be prepared for the post-COVID world. That, thank you, ma'am. Thank you very much, sir. Thank you very much. Appreciate that, the opportunity, and I hope it was useful. Thank you very much. Ma'am, looking forward for your visit in the institution. Surely. Welcome you. As you said, in AC, we are looking forward, not in DC. Absolutely. So we are looking Look forward to it as well. Thank you so very much. Thank you. All right. Have a good day. Bye-bye. Thank you so much.